Sorry, there is some technical issues. So, respected dignitaries, invitees, valued principal, participants, our dearest speakers, pleasant good afternoon, everyone. It's time to shine, to inspire, and to be inspired as usual. It gives me immense pleasure to extend you a very warm welcome on the behalf of Research Foundation of India in the workshop named Crime Against Women and Their Security. I would like to welcome you all in this auspicious occasion of Women Workshop and formal inauguration of RFI Women's Cell. I heartily welcome to everyone our director, Dr. Saurabh Jain, Dr. Ashok Kumar Gupta, South Asia Board President and Vice President, Dr. Priyadarshini Agnihotri, North India President, Dr. Rajat Sharma, National Convener, Professor Ajay Jain, Central India Board President, Dr. Sangeeta Varukama, Vice President, Dr. Subrato Dey Sir, Secretary Central India Board, Dr. Manish Dubey Sir, MP State President, Dr. Prakashini Ma'am, President of Virtual Forum, Dr. Sanjay Prasad Sir, MP State Coordinator, me, Dr. Priyanka Chawla Ma'am, Vice President, Dr. Indra Dikshit Ma'am, President Indore Zone, Professor Kuldeep Agnihotri, Indore Chapter Head, All India Board, and officers of India and world, all members of Indore Core Committee and Central India Board Office Representative Mrs. Priyashi. Welcome you all, welcome. यस्य पूज्यन्ते नारेस्तु तत्र नमन्ते देवता. इसका मतलब जहां नारी को पूजा जाता है वहां देवता वास करते हैं. So the progress of the country, as we all know, is purely depend on the progress of women, and this thought are in the mind of our management team. So now it's not thought, it's like a dream come true. Yes, when our director, our honorable director, Mr. Saurabh Jain sir, made the registration of RFI Women's Cell. This cell is purely for women. RFI Women's Cell has continued with working in one or another way. We have meetings time to time, and by the grace of God and support of our Dr. Saurabh Jain sir, RFI is going to publish a book titled Responsibility of राधा मैम आपकी वॉइस नहीं आ पा रही है. कुछ टेक्निकल इशू है, शायद फिर से रिकनेक्ट हो रहा है. थैंक यू राधा मैम. आपको फिर से कनेक्ट होइए ना, आप रिकनेक्ट होइए फिर से. आप होइए. Please wait 2 minutes. Hello, am I audible? Hello.
Yes, yes, Please Okay, continue. okay. So I would like to invite Dr. Saurabh Jain sir to throw more light in this women's cell. Saurabh sir, are you here? yes, madam. Thank you Okay. very much, Yes, sir. Dr. Sarita Rana, madam, Secretary, Madhya Pradesh Chapter Research Foundation of India. First of all, I would like to welcome our honorable, respected speaker, Dr. Asa Sukla, madam, Vice Chancellor, Dr. Bhimrao Ambedkar University, Maho, Indore. As know very well, Dr. Asa Sukla, Madam, renowned personality and doing the work, best work for gender studies. So, welcome, Dr. Asa Sukla, Madam, Vice Chancellor, Bhimrao Ambedkar University. Also, I would like to welcome Dr. Ashok Kumar Gupta ji, Vice President, Research Foundation of India, National Convener, Dr. Rajat Sarma ji, Research Foundation of India, Dr. Ashok Kumar Gupta ji, Vice President, Research Foundation of India, Professor Ajay Jain, Central Board of India President, RFI, and all core committee member. As we know very well, this webinar is going to be organized by Research Foundation of India Women's Cell on crime against women and their securities. On behalf of Research Foundation of India, I would like to welcome and congratulate to make that webinar success. Thank you, honorable speaker and dignitaries. Over to you, Dr. Sarita Madam. Thank you, sir. Now this is time to call for blessing, and this best blessing will be given by Dr. Ashok Gupta, sir. Ashok Gupta, sir, are you here? It's over Yes, to ma'am. you. Yes, sir. Please. Hello, everyone. My name is Professor Dr. Ashok Kumar Gupta. Currently, I am residing in Boston, USA. I am honored to be invited in this online international workshop on crime against women and their security. The special guest of the day is Professor Dr. Asha Shukla, VC, Dr. Bhimrao Ambedkar University. The workshop is organized by Research Foundation of India. हमें जैसा कि विगत है, हर रोज महिलाओं को थप्पड़ों, लातों, पिटाई, अपमान, धमकियों, यौन शोषण और अनेक हिंसात्मक घटनाओं का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि उनके जीवन साथी या उनके परिवार के सदस्य उनकी हत्या तक कर देते हैं। इस सब के बावजूद हमें इस प्रकार की हिंसा के बारे में अधिक पता नहीं चल पाता है, क्योंकि शोषित और प्रताड़ित महिलाएं इसके बारे में चर्चा करने से भी घबराती, डरती हैं और झिझकती हैं। अनेक डॉक्टर्स, नर्स और स्वास्थ्य कर्मचारी हिंसा को एक गंभीर समस्या स्वास्थ्य के रूप में पहचानने में कई बार चूक जाते हैं। So this wonderful, the most widespread threat to women and girls globally are intimate partner violence and abuse, rape and sexual violence, violence and safety among teen girls, stalking, violence and harassment in the workplace, etc. आपके समुदाय या आस पड़ोस में उत्पीड़ित महिलाओं की सहायता के लिए आपके पास बहुत सारी संभावनाएं उपलब्ध हैं, जैसे कि कानूनी सहायता, मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं, आश्रय गृह, महिलाओं के लिए पैसा अर्जित करने की परियोजना, परामर्श सेवाएं आदि आदि। So all details will be discussed in this webinar by our guest speaker. Congratulations for an excellent online international workshop with an amazing program and great speaker. You did a great job. I wish to congratulate you for the grand success of the workshop. It is a splendid event, both in terms of intellectual quality and social gratification. Starting from March, the government of India ordered a nationwide lockdown limiting movement of the population as a preventive measure against the COVID-19 pandemic. The lockdown restricted people from stepping out of their homes. Even educational institutions, industrial establishments, and hospitality services were also suspended. But as we know that the show must go on, so we were forced to go for virtual events to allow event organizers, speakers, attendees, and sponsors to interact remotely through a virtual environment. I'd like to thank
to the management and staff of organizing such a wonderful event with the help of RFI for enhancing research work. A special thanks to the resource person for being part of RFI, and thanks to all RFI members along with the participants. I would like to exploring further avenues to collaboration and engagement with RFI. Thank you again for inviting me to the workshop. It is a wonderful experience for me. The level and diversity of discussion is going to be outstanding. You have just the right mix of subject, people, and time as requirement. My special thanks to Dr. Saurabh Jain, Chairman RFI, Dr. Radhesham Godrat, RFI Representative Rajasthan, Dr. Priyadarshini Agnihotri, RFI President South North Board, Professor Ajay Jain, RFI President Central India Board, and Dr. Asha Shukla, who is the guest chief speaker of the day. Thank you again. I wish all the best. Thank you. Thank you, Ashok sir, and I am totally agree that when we talk about women equality and everything, we are not there exactly, because what women are facing, they can only know. But still, thanks a lot, sir. I'm agree with you. Now, I would like to call upon our Dr. Priyadarshini Agnihotri, North South India Board President. Ma'am, are you here? Yes, ma'am. Okay, come, ma'am. It's over to you. Thank you, ma'am. Thank you. Okay. मैं आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि हमारी आज की जो वर्कशॉप है उसमें क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड देयर सिक्योरिटी जैसे महत्वपूर्ण विषय को उठाया गया है, तो इस विषय के में मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि देश को स्वतंत्र हुए करीब 7 दशक से अधिक बीत चुके हैं और देश ने परिवर्तन के कई नए आयामों को स्थापित किया है। और एक साधारण भारतीय महिला होने के नाते मैं गौरवान्वित महसूस कर सकती हूँ कि नागरिकों को मिले समान अधिकारों के साथ ही भारतीय महिलाओं को भी शिक्षा, संपत्ति और विरासत में बराबरी का अधिकार है। लेकिन इन सब के बावजूद महिलाओं के लिए देश के मानचित्र पर अभी बहुत कुछ नहीं बदला है। आधी आबादी को अपना अधिकार कब मिलेगा, ये अभी तक एक यक्ष प्रश्न सा ही खड़ा हुआ है। अगर वर्तमान परिदृश्य के संदर्भ में नारी तथा कानूनी संरक्षण की बात करें तो क्या आपको लगता है कि स्त्री ने सच में वह स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है जिसकी वह इच्छा रखती है? अगर इसको और थोड़ा पीछे जाके देखा जाए तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की बात करूं तो स्त्रियों ने घर की जो 4 दीवारियों से बाहर निकलकर बाहरी दुनिया में अपनी पहचान स्थापित करने की कोशिश की और स्त्री की समानता, स्वतंत्रता और कानूनी संरक्षण जैसे मुद्दों से दुनिया में एक नई बहस को जन्म दिया। किंतु इन सब के बावजूद भी वर्तमान समाज में नारी संपूर्ण रूप से राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता के लिए लगातार संघर्ष कर रही है। मेरे ख्याल से आप सभी मुझसे सहमत होंगे इस बात के लिए। यहाँ एक बात और कहना चाहूंगी मैं कि जैविक आधार पर तो, जेंडर के आधार पर तो कोई स्त्री कहला सकता है, पर स्त्री संस्कृति के अनुसार स्त्री होने की शर्त क्या है, इसको समझिए। पहले स्त्री जब भी पुरुष के समतुल्य या बराबरी की बात करती है या कानूनी संरक्षण की बात या समान अधिकार की बात करती है तो मुझे लगता है कि यहाँ पर यह महत्वपूर्ण तथ्य स्पष्ट होना चाहिए कि ना तो स्त्रियां पुरुषों के समतुल्य हैं और ना ही कम है। स्त्रियां कहीं बराबरी की मांग नहीं करती, वो अपनी विलक्षणता के साथ, विलक्षण गुणों के साथ पुरुषों से बिल्कुल अलग खड़ी हुई। और जब स्त्रियां अपनी इस विलक्षणता की भाषा में अपने व्यक्तित्व और अपनी गरिमा को नए रूप में परिभाषित नहीं करेंगी तब तक कानूनी संरक्षण की बात करना मेरे को थोड़ा सा बेमानी लगता है। और स्त्रियों को अपनी विलक्षणता को समझना होगा, उनको ये जानना होगा कि उनका व्यक्तित्व, उनकी चेतना अलग मार्गों से जीवन में गति और भ्रमण करती है और अलग अलग मार्गों से ही जीवन की खोज करती है। तो जो ये टॉपिक जो हमने आज का लिया हुआ है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन देयर सिक्योरिटीज, तो अंत में मैं इसके लिए इतना ही कह सकती हूँ कि पुरातन काल से लेकर वर्तमान तक नारी की स्थिति में बहुत सारे सकारात्मक परिवर्तन देखे गए हैं और अभी भी हो रहे हैं और स्त्रियों को कानूनी संरक्षण बहुत सारे प्राप्त भी हुए। किंतु इन सब संरक्षणों के साथ आज भी विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति विचारणीय है। और मैं इन्हीं सब विषयों पर हमारी जो आज की मुख्य वक्ता है वो प्रकाश डालेंगी।
तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ और रिसर्च फाउंडेशन ऑफ इंडिया की तरफ से आप सभी का धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद मैम। Thank you, Priyadarshini ma'am. Thanks a lot. And yes, your thoughts are provoking us. And thanks a lot, Saurabh sir, Ashok sir. Thank you, management team, that you have thought about women's cell and you have like done for that. Thanks a lot. It's not a thought; it's a dream come true. Seriously for us. Now, the more you take responsibility of your past and present, the more you are able to create the future you seek. With this highest motivational word, I would like to feel great honored to call upon Professor Ajay Jain sir for his nice words. Sir, please come. थैंक यू सरिता मैम। आज का जो वेबिनार का विषय है, तो सबसे पहले तो मैं सर्वप्रथम स्त्री शक्ति को नमन और सबको प्रणाम करता हूँ। इस मेरी बात को प्रारंभ करने के पहले एक खुशखबरी आप सबको देना चाहता हूँ कि रिसर्च फाउंडेशन ऑफ इंडिया में जितने भी सक्रिय सदस्य संख्या है, उसमें मैक्सिमम वुमेन है जो RFI में सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। तो हमारे लिए RFI के प्लेटफॉर्म पे सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमने वुमेन एम्पावरमेंट को, वुमेन सपोर्ट को पूरी तरह से जिया है और हम RFI के माध्यम से जी रहे हैं। तो ज़्यादा महिलाओं की संख्या है। सबसे पहले डॉक्टर आशा शुक्ला मैम, नमस्कार, प्रणाम आपको, और प्रियदर्शिनी मैडम, डॉक्टर अशोक गुप्ता साहब, चेयरमैन, सबको नमस्कार। मैडम वुमेन्स के बारे में, वुमेन सिक्योरिटी के बारे में बहुत सारी अभी बातें हम सबके सामने रखने वाली है। मैं RFI के बारे में 2 बातें करना चाहता हूँ। आज RFI विश्व पटल पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुका है। यह सब संभव हुआ है RFI के सदस्यों, पदाधिकारी आदि की मेहनत से। जिस प्रकार एक घर बहुत सी चीजों से मिलकर बनता है, उसी प्रकार RFI भी आज अपने समर्पित व सहयोगी सदस्यों की सहायता से उच्च स्तर की गतिविधियों कर समाज और शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी होकर कार्य कर रहा है। अतः आज मैं समस्त टीम मेंबर, जिनका कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से RFI को यहाँ तक पहुंचाने में योगदान रहा है, उनको धन्यवाद प्रेषित कर उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सब लोग सुनिए, जितने भी टीम मेंबर, आप सब हैं तो हम सब हैं। धन्यवाद टीम। ये मैं आप सबके साथ कहना चाह रहा था। और अब डॉक्टर आशा शुक्ला मैम, डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता सर, अग्निहोत्री मैडम, ये सब हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारे साथ हैं। तो अब सुनने की बारी इन सब की है। हमको सारी बातें बताएं और हमको समझाएं और आगे हमारा मार्गदर्शन करते रहे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच टीम RFI, टीम पदाधिकारी, टीम ऑफिसर्स ऑफ RFI। थैंक यू सो मच। Thank you, sir. And with teamwork, RFI rocks. Thanks a lot. Now it's time to introduce. Yes, sir. Yes, sir. Saurabh यस sir. सर, डॉक्टर आशा शुक्ला मैडम हमारे चीफ पैट्रन भी हैं रिसर्च फाउंडेशन ऑफ इंडिया के। उनका सपोर्ट हमेशा मिलता रहता है हमें। थैंक यू वेरी मच मैडम एंड वेलकम टू रिसर्च फाउंडेशन ऑफ इंडिया अगेन। ओवर टू यू डॉक्टर सईदा राणा मैडम। थैंक यू सर। सो नारी शक्ति को नमन एज यूजुअल। और जब मैन ऐसा बोलते हैं नारी शक्ति को नमन, तो कहीं तो कुछ अच्छी प्रोग्रेस होने वाली है। एंड डायरेक्टर आई लाइक दैट ओनली। थैंक यू वेरी मच सर। नाउ इट्स टाइम टू गेस्ट स्पीकर प्रोफेसर आशा शुक्ला। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा की प्राप्ति के उपरांत विगत 31 वर्षों से अध्ययन, अध्यापन, लेखन, संपादन व शोध कार्यों से जुड़ी हुई हैं। इन्होंने 24 पुस्तकें लिखी है और 65 शोध पत्रों के प्रकाशन के अतिरिक्त अमेरिका, जापान, सूरीनाम, ताइवान आदि देशों की अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में सक्रिय भूमिका निभाई है। महिला मुद्दों की विशेषज्ञ है मैम, और इन्होंने अपनी पुस्तकों में राजनीति, अपराध व समाज, क्राइम अगेंस्ट विमेन, ह्यूमन ट्रैफिकिंग इन इंडिया, बढ़ती हुई हिंसक प्रवृत्तियां, लाइवलीहुड के अलावा स्वतंत्र लेखन के अंतर्गत अनेक प्रकाशित की हैं पुस्तकें। इन मैडम जो है ये UGC, NCTI, NCIRT, ICSSR, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, NEC आदि की कई समितियों में बाह्य विशेषज्ञ रही हैं। प्रोफेसर आशा शुक्ला मैम का मध्य प्रदेश के राज्यपाल के द्वारा नागरिक अभिनंदन भी किया गया है एवं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री रमेश चंद्र लाहोटी द्वारा इटावा हिंदी सेवा निधि के समारोह में प्रतिष्ठित गंगदेव सम्मान भी प्रदत्त किया गया था।
नव दुनिया समाचार पत्र समूह के स्वच्छता अभियान की ब्रांड एम्बेसडर प्रोफेसर शुक्ला मैम वर्तमान में महिला अध्ययन विभाग बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल मध्य प्रदेश में विभागाध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। वह विभाग द्वारा ही प्रकाशित शोध पत्रिका जर्नल ऑफ जेंडर इक्वलिटी एंड सेंसिटिविटी की प्रमुख संपादक हैं। मैम, वी आर सो प्राइड, वी आर सो प्रिविलेज्ड कि आप हमारे साथ में हैं। आपने इतना प्रीशियस टाइम इसके लिए निकाला है। इट्स ओवर टू यू। वेलकम, हार्टली वेलकम फ्रॉम RFI टीम मैम। आशा मैम, आशा मैम, Yes, yes, yes. okay, Thank welcome you. ma'am, it's over to you ma'am, thanks a lot। आपने हमारे सम्मान में बहुत कुछ कहा। एक आध शब्द को अगर उसमें जोड़ दूं तो मुझे लगता है कि सही परिचय हो सकता है। यस मैम, मैं एक नहीं बहुत सारे जोड़िए मैम, प्लीज प्लीज। मैं वर्तमान में बरकतुल्ला विश्वविद्यालय में नहीं, डॉक्टर BR अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय में ओके काम कर मैम, रही हूँ। ओके ओके मैम। और मैं सबसे पहले रिसर्च फाउंडेशन ऑफ इंडिया वर्ल्ड वर्चुअल कॉन्फ्रेंस फोरम, जिसको स्पॉन्सर्ड बाय वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल रिसर्च गाइड फेडरेशन, आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। और आपके सामने कुछ बातों को रखना चाहती हूँ। मेरी मुलाकात डॉक्टर प्रियदर्शनी के माध्यम से डॉक्टर सौरभ जैन जी से हुई। इन्होंने हमें बहुत प्रभावित किया, क्योंकि इनकी डिक्शनरी में थोड़े रुकना टाइप का शब्द नहीं है, ये दौड़ लगाने वाले व्यक्ति हैं। और आपका फोरम भी, जितना मैं एजुकेशनल जगत में देखती रहती हूँ, उसी में हम भविष्य में चाहेंगे और करेंगे भी। सौरभ जी और प्रियदर्शनी जी दोनों ने इसमें बहुत बातें कही हैं, लेकिन हर एक शासकीय विश्वविद्यालय की कुछ सीमाएं और मर्यादाएं हैं। उनके साथ मिलकर हम आपसे निश्चित तौर पे MOU करें और हम साथ में मिलकर कुछ एकेडमिक काम निश्चित तौर पे करेंगे। ये मैं पब्लिकली इस बात को कहना चाहूंगी, क्योंकि अगर हमारे छोटे भाई बहन इतना मेहनत कर रहे हैं तो मेरा फर्ज है कि मैं आपके साथ स्टैंड करूं और आपके साथ आगे खड़े रहूं। It's RFI pleasure, madam. थैंक यू। डॉक्टर गुप्ता जी, अजय जैन जी और बहुत सारे खूबसूरत चेहरे जो अभी मेरे सम्मान में और इस संस्था के बारे में बात कर रहे थे, उनको भी मैं डॉक्टर BR अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय के सभी शिक्षकों, शोधार्थियों, विद्यार्थियों की ओर से नमस्कार करती हूँ। और इस विश्वविद्यालय में भी आपको भविष्य में जोड़ के आपका स्वागत करना चाहूँगी। इस बात को आगे बढ़ाएं, चूंकि आप क्राइम अगेंस्ट वीमेन और इसके सिक्योरिटी मेजर्स से मुझसे कुछ बातचीत की अपेक्षा करते हैं, तो बात भूल ना जाऊं, क्योंकि बहुत मेरे मन के करीब कार्य का विषय है। हमारे विश्वविद्यालय ने, अभी आपने देखा होगा कि ये UGC का एक पत्र आया कि पूरे देश के विश्वविद्यालय महाविद्यालय जेंडर वाइज पे, स्टीरियोटाइप्स पे, जेंडर सेंसिटाइजेशन पे, क्राइम अगेंस्ट वीमेन, इन सारे डिफरेंट इश्यूज पे कुछ काम करें, उनकी रिपोर्ट। मुझे लगा, चूंकि मैं UGC के कमेटी से भी जुड़ी हुई हूँ, और कमेटी तो बहुत अलग बात है, इस विषय की विद्यार्थी हूँ, तो मेरा दायित्व बोध ये था कि हमारे विश्वविद्यालय से 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई सिर्फ संडे को छोड़ के हर दिन इसके बड़े ही सीरियस नोट के वेब लेक्चर्स हो रहे हैं। और इसी विषय पे, क्राइम अगेंस्ट वीमेन पे 2 और 3 जुलाई को नेशनल वेबिनार है, 20 जुलाई को वेब सिंपोजियम है जेंडर सिनेमा एंड थिएटर पे। और जितने भी विषय आप जेंडर रिलेटेड सोच सकते हैं, चाहे वो साइबर क्राइम हो, चाहे वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो, चाहे वो जेंडर वाइज हो, चाहे जेंडर एंड लाइवलीहुड हो, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो, वीमेन एम्पावर हो, विविध विषयों पे मैंने PDF भेजा है। आप चाहेंगे तो और भेजेंगे। हमारे ब्राउज का जो मबू का फेसबुक लाइव है,
उस पर भी ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन पे हैं, मेरे भी फेसबुक पेज पे हैं। और इसका एकमात्र उद्देश्य वही सामाजिक दायित्व बोध है कि हम लोगों को इस मुद्दे पे काम करना चाहिए, और काम जो हम करें वो बहुत ही वैचारिक जगत में उत्कृष्ट कार्य होना चाहिए। हम लोगों ने इस अपने सारे एक्सपर्ट से ये अपेक्षा करी है कि हर हाल में उनका एक रिसर्च पेपर हमें मिलेगा। तो ये पूरे जो 31 डेज हम करने जा रहे हैं उसमें हमारे लगभग 47 नेशनल स्पीकर्स जुड़ेंगे, और हमें लगभग 45-47 इतने बड़े स्तर के पेपर्स मिलेंगे, और उनको हम पूरे दुनिया को शेयर करेंगे। तो दैट एक भारत की जो दृष्टि है जेंडर सेंसिटाइजेशन के और वीमेन एम्पावरमेंट के बारे में, जेंडर इक्वलिटी के बारे में, वो सारी दुनिया तक पहुंचे। और आईटी सेक्टर इस मामले में बहुत ही फास्ट है, वो काम करता है। एक और चीज आपसे बता दूं, हमारे विश्वविद्यालय में जेंडर स्टडीज डिपार्टमेंट विगत वर्ष ही खोला गया था, और वहाँ एमए जेंडर स्टडीज और सर्टिफिकेट कोर्स 3 मंथ्स का ये संचालित हो रहा है। एक बैच इसका कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आप में से कोई इस विषय के इच्छुक हैं तो इसको जरूर देखिए और जुड़े आप। अब थोड़ी इससे संबंधित बात को करी जाए। मैं वीमेन क्राइम अगेंस्ट वीमेन पे नहीं, क्राइम अगेंस्ट जेंडर पे बात करने की आजकल पक्षधर हो गई। उसका कारण है कि जेंडर में सभी लोग समान हैं, मेल फीमेल बच्चे थर्ड जेंडर सब कुछ, मूलतः यही लोग हैं। तो जब सब समाहित हैं तो सबके बारे में हमको बात, जब हम सबके बारे में बात करेंगे तो हमारी परस्पर चिंताएं साझा, जैसे कि अभी डॉक्टर प्रियदर्शनी कह रही है कि ये आधी आबादी का प्रश्न और उसकी चिंता है। मैं बहुत ही विनम्रता पूर्वक और बिना किसी एरोगेंस के ये कहना चाहूंगी कि चाहे कहीं पे भी हो, दुनिया में हो, लेकिन किसी भी बच्चे का, चाहे वो पुत्र हो या पुत्री, उसका इस दुनिया से परिचय कराने वाली उसकी माँ, और उनका रक्त संबंध का जो रिश्ता है वो एक प्रकट स्वरूप में है। और माँ ही बताती है कि ये पिता है, ये दादा दादी, ये नाना नानी, जो भी अन्य विभिन्न रिश्ते हैं। अतः प्रथम परिचय दाता इस जगत से कराने वाली माँ जो है वो आधी आबादी नहीं, वो पूरी आबादी, पूरा समाज। और उस पूरी आबादी में उस माँ से जुड़े उसका पूरा परिवार, उसका पूरा कुटुंब और पूरी मानवता सम्मिलित। तो हम स्त्री के एक मानवीय पक्ष में पहले कि क्या स्त्री एक इंसान है, वीमेन इज ए ह्यूमन बीइंग और नॉट, ये सवाल है। तो इस सवाल पे हम लोगों ने एक शोध का काम किया, एक परियोजना की। हमारे साथ डॉक्टर सुनीता पाठक जुड़ी हुई थी। तो हमने ये समझने की कोशिश की अपनी बुद्धि का कम इस्तेमाल करते हुए कि जितने भी हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, जितना भी साहित्य है और इनसे जुड़ी हुई जो चीजें हैं, सामाजिक ग्रंथ हैं, उनमें ये इस बात समझने की कोशिश करी जाए कि स्त्री का मानवीय स्वरूप, स्त्री एक इंसान है, सिर्फ एक इंसान है, और बिल्कुल वैसे ही इंसान है जैसे पुरुष उभरता है। क्या तो हो सकता है हम लोगों के देखने में चूक हुई हो, क्योंकि रिसर्च में तो रिसर्च, बार बार पूछना, बार बार देखना, लेकिन हम लोगों को देखने में ये आया है कि स्त्री का मानवीय पक्ष ना के बराबर उभर के देवी का पक्ष, दासी का पक्ष, पत्नी, पुत्री, सखी, प्रेमिका, किसी भी प्रकार का पक्ष, मानवीय पक्ष नहीं। तो मैंने इस बात को समझने के लिए जब अपने कुछ विद्वान मित्रों से जो ह्यूमन राइट्स रिलेटेड मुद्दों पे काम करते हैं, कुछ जुडिशरी में भी हैं, उनसे भी पूछा कि क्या स्त्री एक इंसान है, तो उन्होंने कहा कि नहीं,
ये प्रश्न तो कैसा आप पूछ रही हैं, आपसे ऐसी अपेक्षा नहीं है। तो मैंने कहा अगर स्त्री पुरुष की ही तरह समान रूपेण इंसान है तो दोनों के ह्यूमन राइट्स में अंतर एक। तो ये थोड़ा उलझा हुआ प्रश्न था, बहुत सहज नहीं है इसके जवाब को मिलना, लेकिन इसके साथ फिर बात ये प्रश्न खड़ा हुआ कि आप जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, और इस बात को मैंने हजारों बार कहा होगा, फिर कहना चाहूंगी, क्योंकि अभी हम एक समाज के जो नॉर्म्स हैं उनमें प्रस्तुत नहीं, हम समुदाय व्यवस्था में। तो समुदाय व्यवस्था में जब व्यक्ति प्रस्तुत होता है तो वो किसी भी व्यक्ति की पहचान लिंग भेद से, रंग भेद से, नस्ल भेद से, जाति के अंतर से, वर्ण व्यवस्था के अंतर से, और अब तो इसका और एक अलग और मामला बड़ा है कि सामाजिक आर्थिक स्थितियां कैसी है, उस तरीके से करता है। आप में से कोई, और मुझे तो पूरे विश्व में कोई भी व्यक्ति आज तक ऐसा नहीं मिला, मैं फिर कहूंगी मैं बहुत ज्ञानी नहीं हूँ, विद्यार्थी हूँ, सीखने की कोशिश करती हूँ, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसने ये सुनिश्चित किया हो कि उसको किस देश, किस राज्य, किस जिले और किस घर में किन माता पिता, किस जाति वर्ण गोत्र और किस आर्थिक स्थिति के परिवार में उसको जन्म मिले, ये कोई ने भी निश्चित नहीं किया। तो जब आपने निश्चित ही नहीं किया तो प्रश्न इस बात का है कि उन सारी चीजों पे समुदाय व्यवस्था में भेद का औचित्य कारण, इस पे विचार होना चाहिए और चिंता होनी चाहिए। और चिंता में सिर्फ इतना ही होता है कि अगर हम किसी वैचारिक प्रश्न को बात करते हैं, सोचते हैं और हमें वो ठीक लगता है, कोई समझाता है तो नहीं, अगर हमें ठीक लगती है तो फिर हमारे मन में उस सामाजिक परिवर्तन को विस्तार होता है, जिसको हम धीरे धीरे स्वयं से, परिवार से, और फिर उसको चाहे आप किसी इंस्टीट्यूशन में है, समाज में है, देश में है, वो एक परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू होती है। आप देखिए बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं हम मानवतावादी, हम इंसानियत के हक में, उन लोगों से आप इस प्रकार की बहुत सारी जाति धर्म, इन सारी नस्ल और रंग की बातों को नहीं देखेंगे। तो अगर क्राइम अगेंस्ट वीमेन का एक पक्ष आपको समझना है, तो अभी मैं अपने एक साथी से बात कर रही थी कि इसकी सुरक्षा के उपायों को भी हमारे दोस्त लोग समझना चाहते हैं, तो आपकी दृष्टि से क्या सुरक्षा है। जिस साथी से बात कर रही थी वो बाई चांस पुरुष हैं, लेकिन एक बड़े संवेदनशील प्रोफेसर हैं। तो उन्होंने कहा कि जो जेंडर सेंसिटाइजेशन की ट्रेनिंग्स हैं वो स्त्रियों से ज्यादा पुरुषों की आवश्यकता है। इस मुद्दे को आगे बढ़ाती हूँ। पहले तो आप क्राइम अगेंस्ट वीमेन के कुछ पक्षों को छोटा छोटा समझिए, क्योंकि इस आपकी वर्कशॉप और वेबिनार जिसको भी कहें उसकी कुछ मर्यादा समय सीमा को लेके भी है, लेकिन कुछ चीजों को कहें जिनको भी मैं बहुत बार कहती आई हूँ। जब भी भ्रूण में कोई बच्चा होता है तो हमेशा किसी भी धर्म में, कम से कम भारत में, तो मुझे ये कहते नहीं सुना कि पुत्री हो, आशीर्वाद नहीं, पुत्री हो, सब कोई बोलता है पुत्र, भले एक पुत्र पहले से हो तभी पुत्र हो। तो ये जो मानसिक संरचना है आपकी, तो ये विचार क्यों नहीं करते कि अगर सारे पुत्र ही हो जाएंगे तो उनका विवाह किन पुत्रियों से होगा, और परिवार व्यवस्था और प्रकृति की एक जो पूरा ढांचा है वो किस तरीके से होगी, इस पे जरा विचार करिए। और अगर संभव हो तो इसको थोड़ा थामने की कोशिश करिए। आप कहें कि आपके स्वस्थ संतान हो, आप जो चाहें वो आपके पैदा हो, लेकिन हमेशा ये कहते रहना कि पुत्र हो, वो बिल्कुल वैसा ही है जब आप किसी अपने परिचित के घर बहुत उत्साह के जाएं और हम जैसे वो हमें दरवाजा खोले और वो मुझसे ये कहे कि आइए सावित्री मैडम आइए, तो मुझे लगेगा कि अरे इनको तो मेरा नाम ही नहीं पता, कि हम हमारे आप के मन में हमारे प्रति भाव नहीं। वैसे ही जो भ्रूण में पुत्रियां होती हैं, बेटियां होती हैं, उनको बहुत बहुत तकलीफ होती है जब उनको उनका कोई वेलकमिंग नोट नहीं,
मैं आपको एक उदाहरण बताने की कोशिश करूं, ये पर्सनल उदाहरण ही जनरलाइज होते हैं और रिसर्च के रेंज में होते हैं। मेरे 2 बच्चे हैं, एक पुत्र है और एक पुत्री है। छोटी बेटी है, बहुत ही योग्य बेटी की माता हूँ मैं। तो जब हमारी बेटी पैदा हुई तो हम दोनों ने ये अपने मन में कहा था कि पहले ये सब ज्यादा लोग टेस्ट वेस्ट तो कराते नहीं थे, तो इलीगल होता था, लेकिन परम पिता से यही कहते थे कि हमारे बेटी हो जाए। तो जब हमारी बेटी हुई वो रो भी गई, लेकिन डॉक्टर बोली नहीं, बोली नहीं। तो भाई क्या हुआ, मुझे लगा बच्चे में कुछ गड़बड़ है, क्या बात है। तो उन्होंने बहुत धीरे से 4 मिनट बाद कहा, लड़की हुई। अब बताइए जरा, उनको क्या आफत होने वाली थी, उनको काहे का कष्ट हुआ। वो भी एक लेडी डॉक्टर, पढ़ी लिखी लेडी डॉक्टर, लेकिन कहीं पितृसत्तात्मक सोच का इतना गंभीर पहरा उनके दिमाग पे कि उनकी शिक्षा नहीं हुई। आप दरवाजे पे खबर करने आए कि बेटा हुआ, बेटी, उत्साह की प्रतिक्रिया देखिए, ऐसा क्यों होना चाहिए। अभी एक, जब हरियाणा जैसे रिचे स्टेट में एक कुएं का उत्खनन हुआ तो उसमें सैकड़ों की संख्या में मादा भ्रूण पड़े हुए पाए जाने की सूचनाएं अखबार में। कौन है वो? आप हैं, वो मैं हूँ, कोई और नहीं। तो इन्हीं का जो डिस्बैलेंस होता है, और पॉपुलेशन में जो 1000 की तुलना में जो 934, कहीं 914, कहीं कहीं और थोड़ा जहाँ पे खराब स्थिति है वो 900 के भी नीचे जो शिशु लिंगानुपात है। तो वो जब आप करोड़ों की जनसंख्या में बढ़ता है तो उसकी बहुतायत संख्या बढ़ती है। और जब ये संख्या बढ़ती है तो जब हमारे बच्चे, हमारे बेटे जब युवा होते हैं तो ये समझ में नहीं आता कि उनको वो लड़कियां कहाँ से मिले, उनकी शादियां कहाँ हो, क्योंकि लड़कियां तो कम हैं, उनको तो पैदा होने नहीं दिया गया, उनको तो कम पैदा होने दे दिया गया। ये थोड़ा देखिए आप लोग जो ऑर्गेनाइजर हैं कि कोई बीच बीच में इसको प्रेजेंट करता है, आप लोग प्लीज उनको ब्लॉक करें और एक बार अनाउंस कर दें कि सब लोग अपना म्यूट पे रखें और इस तरीके से बीच में कुछ प्रेजेंट ना करें। मैं यहीं पे एक चीज आप सबसे कहना चाहूंगी कि आपके जितने सवाल हों आप ऑर्गेनाइजर्स को दे दीजिएगा, मेरे पास मेल आ जाएगा, मैं जिम्मेदारी लेती हूँ, आपके हर प्रश्न का जवाब भेज देंगे। लेकिन बीच में थोड़ा सुन लीजिए, थोड़ी बातें अगर कुछ समझ में आ जाए तो समझ लें, हम लोग एक दूसरे से समझ लें है। तो इस वातावरण में जब बच्चियों का आगमन होता है और फिर स्कूल व्यवस्था है, कुछ लोग Hello, hello, hello. Ma'am, you're not audible. Yogi sir, are you here? Yogi sir. Hello. Yeah, Mr. Yogi, please say. Huh. So please take care. Ma'am is muted. Unmute her, ma'am. Yogi sir, please unmute, ma'am. Okay. Okay, Asha, ma'am. आवाज आ रही है। Yes, ma'am. Now it's audible. ओके। Okay. तो ये जो स्थितियां हैं, जब वो लड़की, मुझे लगता है वहीं से मैं कनेक्ट करती हूँ, जब इतने अनवेलकमिंग नोट पे किसी लड़की का आगमन इस दुनिया में होता है और वो जब स्कूल पढ़ने जाती है तो हमेशा कुछ पुस्तकों में ये भी नजर आ जाता है कि सीता खाना बनाती है, राम स्कूल जाता है। तो भाई सीता भी कभी स्कूल जाएगी कि नहीं जाएगी, और राम भी कभी कभी खाना बनाएगा कि नहीं बनाएगा, इस पे विचार करने की बहुत जरूरत है। ये जिम्मेदारी हम माताओं की और पूरे परिवार की। इस प्रकार का जो जेंडर वाइसनेस है, जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है,
उसको बुनियादी तौर पे समझ। तो अब जेंडर सेंसिटाइजेशन की यहाँ बड़ी जरूरतें उपस्थित हो गई, क्योंकि इन किताबों को लिखने वाले भी हम ही आप लोग होते हैं, उनको पढ़ाने वाले भी हम ही आप लोग होते हैं। तो अगर जेंडर सेंसिटिविटी आपके मन में नहीं है, आपके विचार में नहीं है, तो आपको अंदाज ही नहीं पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हैं। जैसे आप देखिए कुछ कुछ समुदायों में, कुछ कुछ जगहों पे बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग माँ बहन की गालियां, उनको अंदाजा नहीं होता, उनकी आदत में होता है, वो माँ बहन की गाली बोलते हैं। अब जो आदत बोलते हैं, अब आप सोचिए वो किस माँ बहन की गाली बोल रहे हैं। वो अपनी ही माँ को गाली देते हैं, अपनी ही बहन को गाली देते हैं, और अपनी माता और अपनी बहन के बहाने सारी दुनिया की माताओं और बहनों को गाली देते हैं। लेकिन उनको पता ही नहीं कि ऐसा हमें करना ही नहीं चाहिए। उन्होंने जो तो अपने बाप दादा से सुना वो वैसा ही वैसा बोलते हैं। आपको और थोड़ा करें, जो मैंने आपको कही थी कि जैसे उदाहरण दिया था कि एक जगह इतने सारे भ्रूण मिले, तो उसका जानते हैं दुष्परिणाम किस प्रकार के। मैं जरा सा जिक्र फॉल्स मैरिजेस का करना चाहूँ। फॉल्स मैरिजेस में बहुत स्पष्ट है, ऑर्गेनाइजर्स देखें आपके सारे, कुछ लोग बैठे बैठे खा रहे हैं, कुछ सो रहे हैं, वो आप देखिए। कुछ लोग खा रहे हैं, मुझे यहाँ से दिखता है, जिनके चेहरे दिखते हैं, वो देखिए खा रहे हैं, सामने कौन है, कौन है, कोई कोई खा रहा है। भाई मुझे भूख लगेगी तो मैं जल्दी से बंद करूँ। तो आगे की बात आपके सामने शुरू करती हूँ। फॉल्स मैरिजेस में सीधे सीधे क्या होता है, जो गरीब जगहों की, जिनमें आदिवासी परिवारों को भी ले सकते हैं, गरीब परिवारों की वो बेटियां जो वर्जिन हैं, थोड़ा खूबसूरत ज्यादा हैं, उनका रिच स्टेट्स के लोग उनको बकायदा परंपरागत शादी के कारण ब्रोकर्स के माध्यम से उनकी शादी करके उनको ले जाते हैं, और उनके लिए वधू धन की जो वहाँ परंपरा है उसके लिए उनको पैसे देते हैं। बहुत अच्छी दावत पार्टी करते हैं। जब उनको इस तरीके से उस लड़की को ले जाते हैं, उन लोगों को पता भी नहीं होता कि उनकी बेटी कहाँ जा रही, और अंत में जब वो लड़की अपनी तथाकथित ससुराल में पहुंचती है, तो फिर ये होता है कि उस लड़की का एक वस्तु के तौर पे दैहिक शोषण होता है, और पूरे घर के लोग उसको वस्तु के तौर पे ही उस औरत को, उसकी भावनाओं, उसकी संवेदनाओं, उसकी उम्र को देखते हुए उसका शोषण करते हैं। और वो शोषण का लेवल ये होता है क्योंकि वहाँ पे इतना जेंडर गैप्स है कि वहाँ पे शादियां नहीं हुई होती ज्यादा लोगों की, और हुई भी होती हैं तो एक बार अगर वर्जना और एक मर्यादा टूट जाए, तो शादी भी हो तो दूसरी औरत मिल रही, तीसरी औरत मिल रही है, तो अच्छा ही लग रहा है, मुफ्त की मिल रही है, दिन भर काम कराना, रात में उसका दैहिक शोषण पूरे परिवार द्वारा कर लेना, और अगर उसके बाई चांस बच्चा पैदा हो जाता है तो कोई डीएनए नहीं कराता, जिससे उसकी शादी होती है, उसी को मान लेते हैं कि उसी का बच्चा है। अब ये फॉल्स मैरिजेस, ये किसका परिणाम है, जो भ्रूण हत्याएं हुई और जिसके कारण जेंडर गैप, जिसमें लड़के लड़कियों में अंतर हुआ, तो वो लड़कियां आएंगी कहाँ से, तो उन लड़कियों को इस तरीके से खरीदी और उनको लेके आए। ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जो मानव दुर्व्यापार, क्राइम अगेंस्ट वीमेन के अंतर्गत एक हीनियस क्राइम है, उसकी एक चीज, एक फॉर्म को मैंने आप बताया, वो है फॉल्स मैरिज। आप देखिए बहुत गरीब घराने की लड़कियां, छोटी छोटी बच्चियां घर में आपको एक तरीके से डोमेस्टिक लेबर करते हुए, फिर वो लेबर के साथ साथ उनका जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन है वो सारा करते करते करते, मतलब आप एक उसको भी आप क्राइम अगेंस्ट विमेन की। अभी जो कोविड-19 का दौर है, इस बात का जिक्र मैंने 2-4 फोरम्स पे किया, आप लोगों से भी करना चाहूँ। घाना की एक महिला ने अपने हस्बैंड के ऑफिस में एक एप्लीकेशन भेजी कि आप मेरे हस्बैंड को, जो लॉकडाउन में घर बैठे हुए हैं, आप उनको ऑफिस बुलाइए, क्योंकि इतना ज्यादा उनका सेक्स को लेके डिमांड है कि हमको बहुत ज्यादा गंभीर प्रॉब्लम हो रही है और हम इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो आप इनको ऑफिस। उस एक महिला ने हिम्मत की, सारी महिलाएं इतनी हिम्मत नहीं कर सकती, क्योंकि उन्हें पता है सिर्फ एक कारण से उनका घर कितनी गंभीरता से टूट जाएगा।
मान लेंगे कि बदनामी करते। कुछ लोग इसको अपना अधिकार मानते हैं, लेकिन अगर कानून की परिभाषाएं में देखें तो स्त्री पुरुष के बीच के भी जो लैंगिक संबंध है वो अधिकार नहीं, वो दोनों की अपेक्षाओं से है। इसीलिए वो चीज रेप के दायरे में लाई गई, क्योंकि महिलाएं इसकी बहुत ज्यादा शिकार है। कोविड-19 के दौर में ज्यादातर लोग घर में बैठे तो जो लोग तो बहुत काम करते हैं, एक्टिव हैं, वो बहुत ज्यादा काम किए। एक्टिव हैं जो काम नहीं करते हैं, उस तरीके का काम नहीं करते हैं कि उनको ज्यादा कुछ वर्क फ्रॉम होम करना पड़े, तो वो क्या करो, बस तो घर में रह के उन्होंने तो खाया पिया और उनका ध्यान इसी प्रकार से उनके सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन पे, उनके डोमेस्टिक एक्सप्लॉयटेशन पे गया। यहाँ पे मैं एक चीज का जिक्र जरूर करना चाहूंगी कि महिलाएं जो घर में श्रम करती हैं उनके श्रम का कभी आर्थिक मूल्यांकन नहीं। बहुत सारे दोस्त लोग इस बात का विरोध करते हैं कि अगर भारतीय महिलाओं के श्रम का मूल्यांकन हुआ तो परिवार व्यवस्था में टूटन आएगी, बिखराव आएगा। अगर मैं इस चीज पे सहमत न होते हुए भी अगर इस पल रुक के कह दूं कि हाँ ठीक है, चलो ऐसे सोचते हैं, तो आप ये बताइए कि उनके श्रम का शेयरिंग क्यों नहीं होता, उनके श्रम का भावनात्मक मूल्यांकन क्यों नहीं होता, उनके श्रम को एक फॉर ग्रांटेड क्यों मान के उसका कोई इवेल्युएशन नहीं होता। जेंडर इंडाइसिस में जब कई उसके जो पैरामीटर्स हैं रिसर्च में जेंडर के पर्सपेक्टिव में समझने में, उसमें एक का जिक्र करूंगी, इक्वल फूड का, कि जितना भी घर में खाना है वो सब कोई पूरे परिवार के सदस्य बराबर खाते हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड में ये हो सकता है, लेकिन वहां पे भी ऐसा पूरा होगा मुझे नहीं विश्वास है। इंडिया में जब इस मामले पे एक रिसर्च करने की कोशिश हम लोगों ने करी तो पूछा आपके घर में मान लीजिए कितना होता है, मैं, मेरे हस्बैंड, एक या दो बच्चे, पक्का हो सकता हस्बैंड के माता पिता, हो सकता मेरे माता पिता, इतना मिनिमम होने की काफी संभावना है। तो घर में जो भोजन बनता है किसकी चॉइस से बनता है, तो बुजुर्गों की चॉइस, और उससे भी पहले बच्चों की चॉइस। बुजुर्गों की चॉइस में उनका स्वास्थ्य, तो दो की चॉइस से जब खाना बनेगा तो घर कोई होटल तो है नहीं। तो बच्चों की चॉइस की एक डिश बन गई, बुजुर्गों की चॉइस की एक डिश बन गई, और बाकी सारा कुछ नॉर्मल हो गया। जब चीजें नॉर्मल हो गई तो खाने के लिए पहले कौन खाता है, बुजुर्ग और बच्चे। हस्बैंड बीच में होता है, बच्चों का पिता भी है, बुजुर्गों का बेटा भी है, सन इन लॉ भी है, वो इधर भी खा लेते हैं उधर भी। अच्छी भी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन मेरे कहने का आशय ये कि डाइनिंग टेबल पे जब 10 चीजें रखी हुई होती है तो उसको वही लोग ज्यादा, उसी डिश को सब लोग ज्यादा खाते हैं जो उनको पसंद है ज्यादा। तो बचता कौन है, जो कम पसंद है। स्वास्थ्य का आकलन तो अब थोड़ा कोविड-19 के दौर में ज्यादा बढ़ा कि किन हेल्दी चीजें क्या है, नहीं हम लोग स्वाद की दृष्टि से ज्यादा खाते हैं। तो जो बचता है वो स्वाद की दृष्टि से कमजोर होता है, तो उसको कौन खाती है, वो लेडी खाती है। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड जेंडर इंडाइसिस का रिसर्चर इस बात पे ध्यान दें कैसे होता है, इस पर जरा आपको विचार करने की जरूरत है। और ये किस प्रकार के क्राइम में आता है इसको भी सोचने की जरूरत है, क्योंकि जिस घर में कोई लड़की पूरा अपना बचपन और सब कुछ छोड़ के आ गई, उसको खाने पे ही अगर ऑब्जेक्शन और एतराज हो, वो अब तो आप उन अच्छे परिवारों की बात मत करिए जो बड़े न्यूनतम हैं, कि जहाँ पे अब सब बैठ के इकट्ठा खा लेते हैं, जिनको हेल्पर्स, जिनकी कुक जिनकी मदद करते हैं। लेकिन नॉर्मल परिवारों में खाना बनाने का काम अभी भी महिलाएं ही, घर की महिलाएं ही। इसी प्रश्न के साथ एक प्रश्न और क्राइम अगेंस्ट विमेन के क्षेत्र में खड़ा होता है कि जो हमारी घर पे रहने वाली बहुत जिम्मेदार सामान्य गृहिणी महिलाएं हैं, जब अगर आप धोखे से उनसे पूछ लीजिए कि जी आप क्या करती हैं, अगर आपको नहीं पता है तो इतने संकोच, इतना उनको वो ऐसे मतलब वो बताती है जैसे उन्होंने कोई बड़ा अपराध कर दिया। हम तो कुछ नहीं करते, हम तो घर में रहते हैं, हम क्या करते हैं, घर का ही काम करते हैं। मतलब उनके घर के काम के कंट्रीब्यूशन
पूरे घर के मैनेजमेंट को, पूरे घर को जो उन्होंने एक इमोशनल लीडरशिप दी हुई है और एक जो एक प्रॉपर मैरिज करके बंधन में बांधा हुआ है, जो उन्होंने जिन्होंने आपके सारे रिश्ते संबंधों को संभाला हुआ है, मैं उनकी बात कर रही हूँ जो घर में काम करने वाली महिलाएं, उनका कोई मूल्यांकन नहीं आपकी दृष्टि में, क्योंकि आपको लगता है ऐसा क्या, ऐसा तो सब करते हैं। जैसे जब जो महिलाएं जिनके बच्चा पैदा होता है, मैंने 2-4 पुरुषों को ये बात कहते हैं सुनी है, अरे इसमें क्या, ये तो बच्चे सभी के पैदा होते हैं। अरे सबके पैदा होते बात सही है, लेकिन जो मर भी जो जाती हैं वो भी कौन होती है, इस पर भी विचार करने की। हमने तो साला 100 के पुराने सा पता है कि मान लो कहीं गलती से 500 के बाद अगला नंबर 100 पे ना आ जाए। आहिर बार जी थोड़ा रुक के अगर सवाल पूछ लेंगे तो हमारा तो कई सालों तक खर्चा जो है वही 100 के निकल भाई के ऑर्गेनाइजर देखें, मैं इनके जवाब दे दूं क्या? ऑर्गेनाइजर प्लीज सी, प्लीज कंट्रोल। मैं आहिरवार जी, मैंने आपसे कहा ना, आपको जितने सवाल मुझसे पूछने हो वो मुझसे जरूर पूछिएगा, पूछना भी चाहिए, लेकिन Dear participants, please be patient. After completion of the session, definitely you will get it the answer. Please cooperate us. Please be respect. Please, thank you. कोई बात, अच्छी बात है, प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, यानी मन में पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी रिएक्शन हो वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि तभी हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। है तो आप इन चीजों पे आप विचार करिए कि ऐसे क्यों नहीं सोच पा रहे हैं। अगर आप एजिंग इशू वो डोमेस्टिक वायलेंस के दृष्टिकोण पे देखने की कोशिश करें, वायलेंस अगेंस्ट विमेन के दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करें, आखिर क्या कारण है महिलाओं का शरीर का पेट्रोल ऊर्जा पुरुषों की तुलना में जल्दी समाप्त होती है। उसका रीजन है कि वो हमेशा केयर रिसीवर नहीं है, केयर गिवर है, चाहे वो वर्किंग हो चाहे नॉन वर्किंग। ये कुछ अजीब सा माइंडसेट बना हुआ है कि भले ही कितना काम करके आओ। मैं एक्सेप्शनल लोगों की और सेंसिटिव लोगों की बात नहीं कर रही, एक जनरल बात करने की कोशिश कर रही हूँ। अभी भी ये माइंडसेट बना हुआ है कि घर को देखने की, घर के काम करने की, शाम की चाय पिलाने की, खाना बनाने की जिम्मेदारी मैं एक अच्छे ट्रेंड को, जो बच्चे बाहर रह रहे हैं, जो अब नई यंग जनरेशन है, उसमें इस ट्रेंड को टूटता हुआ देख रही हूँ कि कोई खाना बनाता है तो कोई घर का सफाई करता है, कोई बर्तन करता है। ये आई थिंक जेंडर सेंसिटाइजेशन की दृष्टि से ये बहुत ही अच्छी बात है। तो आप ये सोचिए कि बुजुर्ग कौन है, स्त्रियां और पुरुष बुजुर्ग कौन है? हम ही सब बुजुर्ग होंगे, हम ही सब युवा हैं, हम ही सब बच्चे हैं, हम ही सब भ्रूण में हैं, कोई अलग नहीं है। तो ये सब हमारी आपकी बात, जो हमारी आपकी बातें हैं उन पे आपको ये विचार करने की बहुत गंभीरता से आवश्यकता है कि उसके सिक्योरिटी मेजर्स क्या। तो उसके सिक्योरिटी मेजर्स में जो दुनिया में, मैं थोड़ा सा 2 लाइन का जिक्र यहाँ पे समय सीमा को देखते हुए ये भी करूं कि जो कॉमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन है उनके अंदाजा लगाने की आप तब कोशिश और समझ कर सकते हैं जब आपको ये समझ में आ जाए कि ये जो आपका शरीर है, जो आपकी बॉडी है, वो हर उस महिला का शरीर है, उसकी बॉडी है जो इसकी शिकार है। अगर आप में इतनी गंभीर सेंसिटिविटी नहीं है तो आप कॉमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन को नहीं समझ पाए। आप उन ट्रैफिकर्स के गिरोह में कब फंस जाते हैं और कब आपको इन सारे धंधों में पहुंचा दिया जाता है, जहां आपके पास जब तक आप विलिंगली इन प्रोफेशंस को एक्सेप्ट ना कर लें तब तक समझ नहीं आता, और आपकी कोई चॉइस नहीं होती है कॉमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन में। जिस तरीके से भी आपका ग्राहक चाहता है आपका इस्तेमाल कर सकता है। चाइल्ड अब्यूज में भी अगर ये पक्ष करें, कॉमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का तो बहुत गंभीरता से बढ़ा हुआ पक्ष है, बहुत ज्यादा। आप कई फिल्मों को भी देखें, पेस्ट्री वगैरह आप देखें, कई आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे भी देखें, इस प्रकार की उपलब्धता के विज्ञापन आपको नजर आएंगे। तो ये सारी चीजें इस चीज का इशारा करती हैं, इंसान के तौर पे स्त्री का जो चेहरा है, जो एक मानवीय पक्ष है, वो स्त्री देह से दब गया। स्त्री देह का इस्तेमाल
उसका शोषण, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस में हो चाहे ऑफिसेस में हो। अगर ऑफिसेस में बिल्कुल कहीं कुछ नहीं होता तो ये इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? यानी वहां पे भी योग्यता के सामने स्त्री देह को कहीं ना कहीं ईव टीजिंग, इशारे। एक स्टडी आई थी अभी मध्य प्रदेश की ही, उसमें कहा कोई महिला ये नहीं कह सकती कि उसके साथ इस प्रकार की छोटी मोटी बड़ी कोई घटना कभी पूरे जीवन पर्यंत नहीं। आप अंदाजा लगाइए ये कितना काला और कुत्सित चेहरा है, कितना है। जो जो आपकी पत्नी बन के आ रही है, जो आपकी बहन है, तो अगर वो इस सारी अपराधों के गिरफ्त में कभी कभी आई हैं, फिक्रेबाजियां, दोहरे संवाद, कहीं ना कहीं उनके ऊपर कोई कमेंट्स, कहीं रेप, गैंग रेप, आप मतलब एक एक अंदाजा तो करें कि अगर इस सब की शिकार वो लड़की है तो वो समाज को क्या देगी। लेकिन ये महिला सशक्तिकरण का ही वो उत्कृष्ट चेहरा है। इतना बर्दाश्त करके भी उन्होंने अपनी क्षमताओं से वीमेन एम्पावरमेंट की दिशा में बहुत उत्कृष्ट काम किया। ये लेकिन बात उन एक उस पक्ष की नहीं हो गई जो उबर गई, बात तो सबकी होगी। एक भी व्यक्ति अगर इसका शिकार होगा तो उसकी उसकी ही जिम्मेदारी से बात करनी पड़ेगी। दूसरे इसमें एक बड़ा पक्ष ये है कि जो सवर्ण और जो हमारी दलित स्त्रियां हैं, आदिवासी स्त्रियां हैं, उनका भी कुछ लोग वो कर देते हैं कि मतलब फॉर ग्रांटेड कैसे आप ले सकते हैं। स्त्रियां सिर्फ स्त्रियां होती हैं, वैश्विक जगत की महिलाएं एक हैं, वो आधी आबादी नहीं पूरी आबादी हैं। और अगर सुरक्षा मेजर्स पे आप लोगों को बात करनी है तो उसका सीधा सा गणित दिखता है कि जेंडर सेंसिटाइजेशन को आपको पूरे अपने विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों के पाठ्यक्रमों के फाउंडेशन कोर्स में अनिवार्य कर देना चाहिए। मैं आपको जरूर कहना चाहूंगी मध्य प्रदेश के महामहिम कुलाधिपति जी ने इस बात की सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है और अब मध्य प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों में हम लोगों के द्वारा तैयार फाउंडेशन कोर्स में पढ़ाया जाएगा, ताकि हमारी जो युवा पीढ़ी है, जो अनजाने में, जिनको नियम कायदा कानून नहीं पता, जिनको आचरण करने का तरीका नहीं पता, उनको क्या बोलना है, कितना नहीं बोलना है, ये नहीं पता। कुछ लोग ऐसे आंख निकाल करके ऐसे ऐसे करके जो बोलते हैं वो कर नहीं सकते, ये इलीगल है, उनको पता ही नहीं है। ये गाली गलौज नहीं कर सकते, उनको पता ही नहीं है क्या कानून है। एक छोटे से घटना से कानून की गिरफ्त में, और अब तो ये सारा जो आईटी सेक्टर्स की व्हाट्सएप और सोशल मीडिया है, एक आपने अगर जेंडर इंसेंसिटिव खबर को लिख दिया, एक बात को लिख दिया, एक वीडियो शेयर कर दिया, तो आपको तो बड़े गंभीर आप अपराध की शिकत में हो जाएंगे। तो कैसे, तो आपको कैसे बताएं। तो जेंडर सेंसिटाइजेशन को एक पूरे देश में फाउंडेशन कोर्स के तौर पे पढ़ाया जाए, ये पाठ्यक्रम हमने तैयार किया है। अगर हम आप चाहें तो इस पाठ्यक्रम को हमसे ले सकते हैं, उनको संचालित कर सकते हैं, हमें बड़ी खुशी होगी। और दूसरी बात यह है कि सब कुछ शुरू होता है परिवार से। परिवार व्यवस्था में जो क्राइम अगेंस्ट वीमेन के रिपोर्टेड क्राइम का 60-70% का मामला कहा जाता है, तो वो कौन है परिवार? पिता है, भाई है, मामा मामी, ये जो रिश्तेदार हैं। तो क्या कहा जाए, इन सबसे दूर रहें बच्चियां, महिलाएं इनसे दूर रहें, क्या कहा जाए? तो वो परिवार व्यवस्था किस प्रकार से समृद्ध होगी। लेकिन इस चीज को इनकार नहीं किया जा सकता कि 60-70% रिपोर्टेड क्राइम विद इन फैमिली सिस्टम है। तो उसके क्या रास्ते हैं? उसका रास्ता यही है कि लीगल राइट्स, जेंडर सेंसिटाइजेशन को एक ऐसी तौर पे प्रस्तुत किया जाए, उनकी बार बार वर्कशॉप, बार बार ट्रेनिंग, 10 लोग सोचें। और अगर उनको पता चलता है कि उनके क्या अधिकार हैं, क्या बोल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो इन चीजों में रुकेगा। कोई चीज एकदम से खत्म नहीं हो सकती। अगर सामाजिक विचारों में परिवर्तन करना है, जेंडर संवेदनशील समाज बनाना है, और अगर आपको परिवार में खुशहाली लानी है, अगर आपको खुश रहना है, आपको एक स्वस्थ समाज चाहिए जहां स्त्री और पुरुष दोनों का मानवीय चेहरा है, तो आपको इन सिक्योरिटी मेजर्स पे जाना चाहिए। वो दंड व्यवस्था किसी भी पापी को दंड दे सकती है, लेकिन किसी भी महिला को जिसके विरुद्ध अपराध हुआ हो
उसको न्याय नहीं दे पाती। आप खुद सोचिए, अगर आपके साथ रेप हुआ है तो आपके रेपिस्ट को दंड मिल जाएगा। निर्भया के रेपिस्ट को दंड मिल गया, लेकिन निर्भया को न्याय, कोई जिंदा कर सकता है निर्भया को? निर्भया ने जो दुर्दांत पीड़ाएं सही, उसको कोई कर सकता है? और इतनी दोहरी मानसिकता अगर इन्हीं बच्चियों के साथ जो लोग इस प्रकार के दुष्कृत्य करते हैं, अगर उनसे कहो कि उन्हें उससे ही शादी करनी है, तो वो बिल्कुल वर्जिन लड़की की तलाश में खड़े हो जाएंगे। समाज का ये दोहरा चरित्र है। आपको बहुत गंभीरता से सोचना होगा। ये हल्का विषय है, ये महिलाओं का विषय नहीं है, किसी विमेंस सेल का विषय नहीं है, ये पूरी वैश्विक मानवता का विषय है। अगर महिलाओं के विरुद्ध अपराध होता है तो आपका परिवार विखंडित होगा, आपका समाज विखंडित होगा, आपका राष्ट्र विखंडित होगा, क्योंकि मन में जो ज्वालामुखी चलेगी उसका विस्फोट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो उस महिला उस क्षमता पे डिपेंड। मुझे लगता समय सीमा 2:59 हो रहा है, 3 बजे तक का समय था, मुझे यहाँ पे रखना चाहिए। नमस्कार, आपने हमें आमंत्रित किया और मैंने अपनी अनुभवों से कुछ चीजों को बड़े सरल शब्दों में कहने की कोशिश की है। जो आपको अच्छा लगे वो आप समेट लीजिए, जो अच्छा ना लगे वो आप लिख भेजिए, उस पर हम लोग विचार। थैंक यू सौरभ जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। इट इज नाइस प्रिविलेज कि आपने अपना बिजी शेड्यूल से थोड़ा सा टाइम निकालकर हमारे पूरे पार्टिसिपेंट्स को उद्बोधित किया, और इसके हम बहुत 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 थैंकफुल हैं आपके। मैडम, रिसर्च फाउंडेशन ऑफ इंडिया के बारे में और मैं बताना चाहूँगा कि रिसर्च फाउंडेशन ऑफ इंडिया में 5 जोन वर्क कर रहे हैं: वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडिया। इसमें मैडम सभी जोन में जितनी भी मेट्रो सिटीज हैं उस पर रिसर्च फाउंडेशन ऑफ इंडिया के चैप्टर्स प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी एंड वाइस प्रेसिडेंट वर्क कर रहे हैं। नियर अबाउट 8000 मेंबर्स रिसर्च फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अंडर में काम कर रहे हैं, और 585 हेड्स एंड ऑफिसर्स रिसर्च फाउंडेशन ऑफ इंडिया के लिए अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। एक्चुअली रिसर्च फाउंडेशन ऑफ इंडिया सभी के सहयोग से ही रन हो रही है। इसमें हम कोई फाइनेंशियल सहयोग नहीं लेते हैं, पर जो एक लेवल पर लोगों के विचार, लोगों की हेल्प जो जरूरत पड़ती है और सभी लेवल पर जो सहयोग प्रदान करते हैं, उसके बेसिस पर भी रिसर्च फाउंडेशन ऑफ इंडिया ग्रो हो रही है, और इसमें सभी का सहयोग प्रार्थनीय है, और उसके लिए मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ। ऑल दी स्पीकर्स, ऑल दी डिग्निटरीज, participants. Without participants we cannot do anything, as you know very well. So बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Thank you very much. Over to you, Dr. Sarita Rana madam. Thank you madam. Thank you sir. Thank you Asha ma'am. The session is so informative and yes, जो भी आपने, हम लोग उससे बिल्कुल एग्री हैं। विमेन का हालात सुधरने में नहीं आ रहे हैं और बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो नहीं हो रहे हैं सॉल्व। देखते हैं, करते हैं कुछ इसके लिए। अपनी तरफ से सब लोग कोशिश करेंगे तो कहीं तो पहुंच ही जाएंगे। धन्यवाद आशा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स की लाइक टू कॉल अपॉन यश्री मैम। यस मैम, I'm there. Yes, am I audible? Yes ma'am. Okay. A very good afternoon, ladies and gentlemen. I, Ashri Dubey, co-chapter head, Central Zone Indore, feels deeply honored and privileged to get this opportunity to present a vote of thanks for this very special international workshop on crime against women and security, organized by Research Foundation of India. First of all, let me take this opportunity to extend a very sincere thanks to Dr. Saurabh Jain, Chairman RFI, Dr. Ashok. Yes, little loud, be little, ma'am. Little loud, there is disturbance. Okay. Yeah, is it better now? Hello? Little loud, if you will speak little loud, it will be good. Yes, ma'am. Yeah. So shall I start again? Yes, ma'am. Yeah, please keep it. Yeah. A very good afternoon, ladies and gentlemen. I, Ashri Dubey, co-chapter head, Central Zone Indore, feels deeply honored and privileged to get this opportunity to present a vote of thanks for this very special online workshop on crime against women and security, organized by Research Foundation of India. First of all, let
let me take this opportunity to extend a very heartily thanks to Dr. Saurabh Jain, Chairman RFI, Dr. Ashok Gupta, South Asia Board President and Vice President RFI, Dr. Ajay Jain, Central India Board RFI, Dr. Priyadarshini Agnihotri, South North Board RFI President Dr. Rajat Sharma and Dr. Sarita Rana. We really thank you all members of RFI, all the dignitaries of RFI for providing this opportunity, for providing us this much needed platform where we get an insight about the crime against women. So thank you all the dignitaries. And yes, I would also like to thank the expert for today's session, Dr. Asha Shukla, Vice Chancellor, Dr. Bhimrao Ambedkar University, for representing this much needed issue against women. And yeah, the way ma'am you explained this topic was extraordinary. I really liked when you throw light upon the importance of housewife. Yeah, it is the paradox of Indian society that on one hand we consider women, we acknowledge women as goddess, and on the other hand we see the increase in number of crimes and intensity of crime against women. So yeah, we can say that this is the paradox of Indian society. And also I would like to thank all the RFI team members who are highly motivated enough and dedicated enough to devote their time and energy in bringing out such important and crucial issues and try to organize webinars on the same. So thank you all the dignitaries of RFI, all the team members, and yes, our very special expert for today's session, Dr. Asha Shukla ma'am. Thank you so much all for joining. Thank you, madam. On behalf of Research Foundation of India, today I am going to be announced over there. I want to be honored by lifetime membership to Honorable Speaker Dr. Asha Shukla madam, Vice Chancellor Dr. Bhimrao Ambedkar University. So madam, congratulations. I want to be honored by lifetime membership to you. So it's a nice privilege of RFI. Thank you very much, madam. And also I have required to be discussed over there on date of 6 to 13 July, Research Foundation of India is going to be organized faculty development program on NAC accreditation. So for this particular, Dr. Bhimrao Ambedkar University is sponsoring and supported in association with Research Foundation of India. So thank you, Dr. Asha Shukla madam, again. Thank you very much and always welcome to Research Foundation of India, madam. Over to you, Dr. Asha Shukla madam. Thank you. Thank you, Saurabh sir. Everyone, thanks a lot. Sir, is there any Saurabh sir? Yes, madam. Now to go for team member announcement. Yes, it is not audible actually. Okay. Is there any announcement, sir? Hello. Hello. Sir? Yes, yes, madam, please. Question answer round. Madam, voice is not clear. Actually, I am not able to listen. सर हम लोग ये पूछ रहे हैं कि आंसर ले सब लोग मैडम आफ्टर वोट ऑफ थैंक्स के बाद एक मिनट लिसन टू केयरफुली. हेलो. Yes, madam, please. मैम सर वोट ऑफ थैंक्स के बाद क्वेश्चन आंसर राउंड नहीं होगा या तो पहले हो जाता? हाँ नहीं, एक्चुअली क्वेश्चन आंसर राउंड के लिए मैडम ने बोला है, डॉक्टर आशा शुक्ला मैडम ने, सेंड योर questions in info@foundationofindia.com, so they will answer separately. According to protocol, after vote of thanks, आप नहीं कर सकते हैं इसको, आप रिटर्न में ले लीजिए क्वेश्चन, मैडम प्रोवाइड कर देंगे आंसर उसका. Yeah, yes ma'am, that only I am asking. Yes sir. बोल दिया था कि हम उनको जो भी आंसर्स लगे हैं वो हम उसको रिप्लाई कर देंगे, तो we can call in info@researchfoundationofindia.com. Okay, fine sir. Yes sir. Okay, please. Thank you, Dr. Sarita Rana madam, and congratulations to all core committee member, all women core cell, Research Foundation of India. Congratulations once again, Central Board of India, Dr. Prakashini
तिवारी मैडम, डॉक्टर सरिता राणा मैडम, डॉक्टर इंदिरा दीक्षित मैडम, डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता जी, वाइस प्रेसिडेंट रिसर्च फाउंडेशन ऑफ इंडिया, डॉक्टर प्रियदर्शनी अग्निहोत्री मैडम, साउथ एशिया एंड नॉर्थ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट, डॉक्टर अजय जैन जी, प्रेसिडेंट सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडिया. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू अगेन. Yes, over to you, Dr. Sarita Rana, madam. Sir, there is no questions here, so can we wind up now? Yes, madam, you can please. Okay. So all the participants, thanks a lot. We are going to wind now. Thank you for attending. Take care. हाँ मैडम नमस्कार. हाँ हो गया एक्चुअली वो क्या बोलते हैं अच्छा था मैडम का सेशन पूरा फेसबुक लाइव चला है रिकॉर्ड चला है.